Akshita welcome you all. Respected guests, how different is this morning? You will yourself witness as the color of these events unfold. Well, my first and foremost duty is to welcome you all on the behalf of our school teachers and students on this annual result ceremony. Thank you all for giving your valuable time to us. Today we will be admiring, celebrating, acknowledging and remembering the achievements of our institution. And we are honored to have Mr. Narendra Bhardwaj as the chief guest, and we are extremely happy to welcome you, sir, to a very special day. Please keep clapping. On this day, you will witness the children's achievements and many brilliant performances. We are glad about your presence, sir. Now it's time to felicitate our guest of honor with badge, shawl and cap. I would like to request our chairman, sir, to honor our chief guest, Mr. Narendra Bhardwaj. Please come on the stage and honor our chief guest, sir. प्लीज जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे हम। ऑडियंस प्लीज। Now I would like to request Sanjay Sharma sir to please come on the stage and our chairman sir to please come on the event. Don't be distracted. Ma'am, to please come on the stage and honor our chairman sir. Please keep clapping everyone. Mistake and accepted my mistake. I was consumed by my own light. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Now I would like to call on the stage our honorable chief guest, Mr. Narendra Bhardwaj, our chairman sir and principal ma'am, to please come on the stage for lamp lighting and worship ceremony. Please.
of sixth class, and he is my classmate Rohan. Our model is based on computer. There are four main parts of computer: monitor, CPU, keyboard, and mouse. Now I will explain about monitor and CPU. So, monitor is an output device. Monitor is an output device. A monitor looks like television screen. We can see our work on it. So next is CPU. CPU is the brain of computer. CPU stands under processing unit. Thank you. Of sixth class. Now I will explain about keyboard and mouse. Keyboard is an input device. There are many keys. There are many keys. They help us to key and they help us to write anything. Mouse is also an input device that helps us to move here and there in computer screen. Now I would Please keep clapping, everyone. Please be present on the event. अंदर वो थोड़ी छाती भी नहीं ले Every accomplishment starts with the decision to try. Our choices reflect our hopes, not our fears. I, Himanshi, once again welcome you all. The biggest adventure we can ever take is to live the life of our dreams. Now it's showtime. Welcome you all, even by taking the name of Lord Ganesha,
performance by the student of please come on the stage. Start. For the students of nursery and KG, class of Priya branch, please come on the stage and show their talent. Audience, please encourage them with the class. Ashes,
Thing coming in my mind, the music, dance, and girls and boys dressed in frocks and swing street dance. It's time for our next performance.
Wow, what a wonderful performance. Keep clapping. A good teacher will appreciate the good qualities of their students. If one good quality
My name is Erin Thakur. I am a boy. I read in UKG class. Good morning, friends. My name is Shwan Bhardwaj. I am a boy. I read in UKG class. I am going to do Bollywood dance in front of you.
समझ सको तो समझो दिल भर जाने, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आँखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आँखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी बेजानी। हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। My name is Yuvika. I am a girl. I read in UKG class. I am going to do Punjabi dance in front of you.
गोरी 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 कनी कनी चोरी चोरी ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये चीज नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये चीज नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया जय जय शिव शंकर जय जय शिव शंकर बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई
मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, तेरे गाँव में, किसी की छाँव में, माँ के आंचल से, गाँव में पीपल से, किसी के काजल से, माँ के अफसोस नहीं जो तेरे लिए स्वागत से महफूज रहे तेरी आन सुना चाहे जान मेरी ये रहे न रहे से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका
performance they give. These students deserve and standing applause. Everyone please stand up and clap for them. Everyone please stand up and clap for them and for our brave Jawan. बाकी पीछे खड़े कर दो। कश्मीर की सुंदरता को यह तो मुझे मालूम नहीं, मगर कश्मीर की सुंदरता को मैं जन्नत, लेकिन कश्मीर की सुंदरता को ही मैं जन्नत पुकारता हूँ। फर्स्ट क्लास मंगला ब्रांच कश्मीरी डांस कम ऑन द स्टेज।
आशीर्वाद से आना हुआ। सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। इस विद्यालय के चेयरमैन श्री अनिल ठाकुर जी से संपर्क होने पर एक शिक्षक होने के नाते आपके यहाँ आने का सौभाग्य माँ चंडी के आशीर्वाद से मिला। जैसा मुझे जानकारी मिली है, इस विद्यालय के संचालन में भी शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा क्षेत्र में काम कर चुके हमारे कर्मठ प्राइमरी विंग में CST स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी किस आशीर्वाद से, प्रेरणा से, उन्हीं के सपुत्र श्री अनिल जी और उनके परिवार द्वारा अपने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के में रहने वाले बच्चों के लिए अच्छा शैक्षणिक संस्थान मिले, वातावरण मिले, इसकी एक शुरुआत इन्होंने 2009 में की थी, जिसे 2012 में SP बोर्ड धर्मशाला द्वारा मान्यता दी गई और उसके निरंतर काम करते हुए आज इस विद्यालय का 12वां वार्षिक पारितोषिक वितरण आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूँगा कि वर्तमान विद्यालय में 200 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें माध्यमिक विद्यालय भरिया और प्राथमिक विद्यालय मंगला, और दोनों विद्यालय में 20 के करीब परिवारों को इस संस्थान द्वारा रोजगार देकर राष्ट्र निर्माता की भूमिका में लगाया गया है। ये बहुत सौभाग्य वाली बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि हमारी वंदनीय मातृशक्ति के रूप में हमारी छोटी बहनें, बेटियां इन दोनों विद्यालय में राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। श्रीमती राखी जो मिडिल स्कूल मंगला की मुख्याध्यापिका हैं, और श्रीमती सोनिया ठाकुर जी जो इसी संस्थान प्राथमिक विद्यालय भैया में अपनी सेवाएं बखूबी दे रही हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे विद्यालय के विद्यार्थी, SMC, अध्यापकगण, मैनेजमेंट और यहाँ की स्थानीय जो मातृशक्ति है, और विशेषकर सबसे ज़्यादा जिन्हें देखकर हमें गर्व होता है, इन दोनों संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रही हमारी वंदनीय छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है, जो हमारा भविष्य है। उन सबका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व को ही शिक्षा जगत में आपस में बातचीत करने का सौभाग्य दिया। आप सबका हार्दिक आभार, माँ चंडी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा आपके समक्ष। मैं आपको कुछ एक मैसेज देना चाहूँगा कि विद्यालय चाहे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे आपके प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों में एक बहुत बड़ी धारणा रहती है कि प्राइवेट स्कूल में फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, स्वाभाविक लगता है उनको। लेकिन इस विषय पर शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि लंबी गुलामी को सहन करने के पश्चात शत विशक हालात में जो हम आज़ाद हुए, और उस आज़ादी को दिलाने में असंख्य हमारे जो जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हुए, शहीद हुए देश के लिए, जिनके पदचिन्हों पर हमें आगे चलकर इस देश को बड़ा करना था, तो सौभाग्य से आज़ादी के पश्चात हमारी सरकारों ने बहुत बड़ा काम करते हुए हम सबको अधिकार देते हुए, सुविधाएं देते हुए अपने देश को आगे लाने का काम किया है। सबसे इतनी ज़्यादा आबादी में रहने वाले देश में अगर सरकारी विद्यालयों में हमारे खर्चा कम है, उसका कारण है कि हमारी सरकारें उस खर्चा वहन कर रही हैं। सरकारों का धन्यवादी होना चाहिए हमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा सरकारें वहन कर रही हैं। लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा संस्थान हो, इसलिए प्राइवेट क्षेत्र के लोगों ने भी, बुद्धिजीवी लोगों ने भी, कुछ समाजसेवी लोगों ने भी शिक्षा की लोग जगाने का बीड़ा उठाया
और इस संदर्भ में वो काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ संस्थान खड़ा करना, काफी लोगों को रोजगार देना, वो अपने बलबूते पर करना, तो स्वाभाविक तौर पर जो सरकारी क्षेत्र में हमारी सरकारें खर्चा बयान कर रही है, वही खर्चा प्राप्त करने के लिए समाज के हम लोग ही आपस में कंट्रीब्यूट करके ऐसे संस्थान चलाए जा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को, अभिभावकों को कहना चाहूंगा, शिक्षा मात्र शब्द ज्ञान नहीं है। आप देखते होंगे जब हम पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से हम बाहर आते हैं, तो सबसे बड़ा शिक्षक अगर इस समाज में होता है, किसी का शुभ चिंतक होता है, किसी व्यक्ति का मात्र सभी हो सकते हैं, लेकिन दो लोगों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। एक जन्म देने वाली जो माँ होती है और एक विद्यालय में जाने वाले जो गुरु होते हैं। अगर हमारे व्यक्तित्व निर्माण में और हमें सही दिशा देने में अगर सही तरीके से अगर काम करते हैं, दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म देने वाली माँ हर बार हमें प्रेरणा देती है, संस्कार देती है और हर बार हमें मार्गदर्शन करती है। जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालयों में हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो हमारे व्यक्तित्व निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और शिक्षा जगत में भी गर्व होता है कहने में कि सबसे ज्यादा अगर कठिनाई वाला काम करने वाला शिक्षक वर्ग है हमारा, वो प्राइमरी जगत का है। वो इसलिए क्योंकि एक मिट्टी को स्वरूप देना आसान काम नहीं है। मिट्टी का घड़ा बनाना है, क्या बनाना, उसको स्वरूप देना है, ये बहुत कठिन काम है। हमें सौभाग्य मिला हुआ है कई वर्षों से, परमपिता परमेश्वर ने सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले डेडिकेशन के साथ कि एक राष्ट्र निर्माण का कार्य हमें मिला है। लेकिन जो प्राइमरी विंग से लोग तैयार करके आते हैं, तो हम कभी सोचते हैं कि ये विंग अगर इतनी कठिनाई से व्यक्तित्व तैयार ना करे तो आगे हम उसको स्वरूप कैसे दें। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। स्ट्रक्चर को खड़ा करना प्राथमिक विंग का काम है, आगे उसको स्वरूप देना, एक्सटेंड करना, उसको विस्तार देना यूनिवर्सिटी जगत तक हमारे लिए शिक्षक साथियों का काम रहता है। और सौभाग्य से राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका सबकी रहती है, यही हमारा सौभाग्य है। लेकिन अभिभावकों से मेरा निवेदन रहेगा कि आज समस्याएं ये नहीं है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, आज समस्या ये है कि हम खो क्या रहे हैं। सबसे पहले तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे अपने देश के जाबाज सैनिकों को, जिनके बलबूते हम यहाँ सुख सुविधाओं में अधिकारों का उपभोग करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि भारत की सीमाओं से अगर 1 घंटा 2 घंटा भारत की सेना को विराम दे दिया जाए तो हमारे कितने शुभ चिंतक देश के अंदर और बाहर बैठे हैं, तो इस देश का क्या हासिल करेंगे। इसलिए वो किसान लोग जो अन्न उगा रहा है, जो वैज्ञानिक लोग जिन कठिनाइयों में मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, संभव नहीं है, लेकिन उन महान शख्सियत का अगर आप इतिहास पढ़ें, इसरो के वैज्ञानिक का पढ़ें, वैज्ञानिकों का, फौजियों का, किसानों का, तो किस तरीके ऐसे परिप्रेक्ष्य में वो पैदा हुए गरीब परिवारों में और वो मुकाम हासिल करके दे दिया। चांद पर पहुंचाने वाला व्यक्ति गरीब परिवार का ही हमारा वैज्ञानिक है। लेकिन आज समस्या कहाँ आ रही है, स्कूल में विद्यार्थी, शिक्षक और घर में माता पिता। हम एक गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी समाज में। वो क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को जो देना चाह रहा था उसको नहीं दे पा रहे हैं। वो बात क्या है, उससे पहले मैं बात करूंगा कि विद्यार्थी को माँ और गुरुजन एक बराबर शिक्षा संस्कार देते हैं, लेकिन उसके पश्चात किस दिशा में जाना है, ये माता पिता अच्छे संस्कार दें, गुरु अच्छे संस्कार दें, उसके पश्चात भी कई बच्चे भड़क जाते हैं। कारण इसमें हमारी स्वयं की भूमिका भी होती है। इसलिए बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना सीखें। गुरु प्रेरणा दे रहा है, माँ बाप प्रेरणा दे रहा है, लेकिन उसने कौन सा रास्ता तय करना है। अब आप कहेंगे छोटे बच्चों को क्या पता कौन अच्छा रास्ता कौन बुरा रास्ता। आप लगे हुए, माँ बाप ईमानदारी से लगे, गुरुजन ईमानदारी से लगे, फिर भी बच्चे भटक रहे हैं, क्योंकि बड़े हो गए बच्चे तो उनकी गलती मानी जाएगी कि 2 रास्ते दिए, आपने कौन सा चुनना है, आगे जाने वाला या नीचे जाने वाला। लेकिन
ना समझ बच्चों को कौन समझाएगा, वो घरों से समझाया जा सकता है। बच्चों को आज अंग्रेजी का ज्ञान, बॉलीवुड का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान आना जरूरी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में हम विश्व में किसी से पिछड़ नहीं सकते। लेकिन बच्चों को ये मालूम हो कि आज हमारे बच्चे जिस गर्व से फॉरेन कंट्री में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उन बच्चे को जाना चाहिए, वहाँ मिल रही सुविधाएं लेनी चाहिए हमारे पास, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए था कि आज जहाँ हम जा रहे हैं सब वहाँ के लोग यहाँ आया करते थे, तक्षशिला में, नालंदा में आया करते थे। हमें ये बताया जाता है अपने बच्चों की हम बड़े रूढ़िवादी थे, कट्टर थे, हम अनपढ़ थे, स्वाभाविक थे, हमारी गलतियां थी, इसलिए हजारों सालों की गुलामी में हम गए। लेकिन बच्चों को ये तो पता है कि हम गुलाम रहे अपनी कमजोरियों से, लेकिन बच्चों को हम लोग ये नहीं बता पा रहे हैं, अपने माँ बाप अपने बच्चों को, हम गुरुजन अपने विद्यार्थियों को, कि गुलामी से पहले हम कहाँ थे। हम बच्चों को अपने संस्कारों की, धर्म की, पर्यावरण से संबंधी स्वच्छता की, अपनी विरासत की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं सर। और यही कारण है बच्चे जड़ों से कटते जा रहे हैं। और ये स्वाभाविक प्रकृति का नियम है, जड़ों से कटेंगे तो मिट जाएंगे, जड़ों से जुड़ेंगे तो विस्तार होता चला जाएगा। अगर हम गर्व के साथ कहें कि हम उस देश की निवासी हैं जो विश्व गुरु हुआ करता था, तो ये भी गर्व होगा कि जो बीच बड़ा कालखंड आया जिसमें हमारी गलतियां थे, जिसके कारण ये कहा जाता है ये सपेरों का देश था, ये अनपढ़ों का देश था। हो सकता है उस समय हमारी गलतियां थी, लेकिन उससे पहले जो गौरवमयी संस्कार खड़े करके इसके देश को गए थे, फौरन से लोग यहाँ आते थे। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में ये कहा जाता है ये खोजें यूरोपियों ने की, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आर्यभट्ट कौन था, शून्य का आविष्कार किसने किया, भारत में वेद किसने रचे, भारत में संस्कार किसने खड़े किए, भारत को विश्व गुरु किसने बनाया। तो क्या वो अनपढ़ थे? जी नहीं, अनपढ़ नहीं थे। उस कालखंड से हम वाकिफ नहीं थे और हम दूर रहते गए, फिर दूर किया जाता रहा हमें। लेकिन कुछ लोगों ने इस दूरी को पाटा, मिटाया, संस्कार धीरे धीरे आगे बढ़े, कुछ पीढ़ी काटने में लगी थी, कुछ पीढ़ी जोड़ने में लगी। और बड़ा फख्र होता है कि काटने वालों की पीढ़ी और जोड़ने वालों की पीढ़ी में कभी जोड़ने वालों की बहुत कमी थी। लेकिन आज हम उस मुकाम पर खड़े हुए हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण भाव पैदा करने के लिए काटने वालों की तुलना से आज हम जोड़ने वालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। तो मेरा कृपा करके माँ बाप से दो हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को आप घर में शिक्षित तो कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, सुख सुविधाएं हैं। हमारी सरकारों ने इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया, वैज्ञानिकों ने इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया, किसानों ने इतना स्ट्रक्चर खड़ा किया, इस देश में इतनी मजबूती दी सभी लोगों ने मिलकर। लेकिन घरों तक थोड़ी सरकार आएगी काम करने, घरों तक थोड़ी वैज्ञानिक आएंगे। आज प्रशासन हो, हर विभाग हो, इतना बखूबी काम कर रहा है। आप बोलेंगे कि किसी जगह गलती होगी, भैया परिवार में भी कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है। हर परिवार को भी तो हम नहीं संभाल पाते। अगर 140 करोड़ देश के लोगों को संभालने वाली हमारी सरकारें लगन से काम किया, तभी आज हम यहाँ पहुंचे। हमारे प्रशासन ने काम किया, सैन्य सेना ने काम किया, वैज्ञानिकों ने काम किया। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान इसलिए बढ़ता जा रहा है। लेकिन कमी रही तो अपने परिवारों से रही कि परिवारों से क्या हम अपनी जड़ों से काट नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या आज एक बच्चा होता है, दो बच्चा होता है, उसको छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, उसको इंसेंटिव देते हैं, कोई बात नहीं बेटा तू कर ले मैं देख लूंगा। सबसे बड़ी कमजोरी हम माँ बाप की आज ये आ रही कि बच्चों की काउंसलिंग करने की बजाय पुत्र पुत्री मोह में उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके उनको हम ही उकसा रहे हैं गलत दिशा में जाने की। इसलिए हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी। बच्चों को संस्कृति से जोड़ना होगा, सभ्यता से जोड़ना होगा, संस्कारों से जोड़ना होगा, संवेदनहीनता से संवेदनशीलता की ओर लाना होगा। और उन बच्चों को कोई भी गलत काम करने पर उन्हें रोकना होगा, टोकना होगा, समझाना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। क्या कारण है आज जापान में, क्या कारण है आज इजराइल की भूमि में गर्दार लोग पैदा नहीं होते? क्या कारण है कि आज जापान के बच्चे आगे जा रहे हैं? चाहे समस्या वहाँ है, बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी। हमारी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जवानों की संख्या बहुत बड़ी है।
सब हम गर्व करते हैं कि भारत में सबसे बड़े जवान है। भैया यही हमारे लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है कि अगर इन जवानों को, इस जवान पीढ़ी को घर से, समाज से संस्कार न दिए गए, संवेदनशीलता नहीं दी गई, तो यही बड़ी फौज की हमारी गलत राह पे निकल पड़ी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अभिभावकों से, समाज के सभी लोगों से कि पूरे समाज को परिवार मानकर मेरा बच्चा मेरा नहीं है, सबके बच्चे मेरे हैं और मेरे बच्चे भी सबके हैं, इस विचार के साथ अपनी पीढ़ी को, आप देखिए आज सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं फिर भी चोरियां हो रही हैं। पुराने जमाने में कैमरे नहीं होते थे, गांव के बुजुर्ग ही कैमरे होते थे और वो बुजुर्ग ही आज भी अपने बुजुर्गों के सामने हम थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी किसी से भयभीत नहीं हो रही है। पीढ़ी का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है, हम बचपन से उनको संस्कार नहीं दे पाए। तो कृपा करके सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, बाप होता है, घर का वातावरण होता है, इसलिए सबसे बड़ी गुरुओं पर आरोप न लगाएं। गुरुओं में कमी हो सकती है, वो भी इंसान है, लेकिन घर से ऐसा वातावरण निर्माण किया जाए कि घरों से हम अपने बच्चों को संस्कारों की जड़ों में जोड़ के रखने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि देश हम सबका है, समाज हम सबका है। जितना हम इसको सुदृढ़ बनाएंगे, जितना सभ्य बनाएंगे, जितना शालीन बनाएंगे, हम लोग ही विश्व पर आगे जाएंगे, विश्व गुरु फिर हम बनेंगे। लेकिन ये दायित्व सरकार तो निभा रही है, प्रशासन निभा रहा है, हर विभाग निभा रहा है, लेकिन घरों से कमी हमारे में आ रही है। तो कृपा करके घरों का वातावरण जो उस तरीके से बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आप गंभीरता से लेंगे। बच्चों को न सिर्फ संस्कारों के प्रति बल्कि वैज्ञानिकों का सम्मान करना, विज्ञान से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, लेकिन धार्मिक कुरीतियों को दूर करने की प्रेरणा देना, अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा देना, समाज से जोड़ो लेकिन सामाजिक कुरीतियों से दूर जाने की प्रेरणा उनको देना, स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, पर्यावरण के बारे में जागरूक करना और समाज में अपनी भूमिका कि हम समाज से, देश से, सरकारों से, परिवारों से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी, हम अधिकारों को रोना सभी रो लेते हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो कृपा करके अधिकारों के बारे में तो जागरूक करें बच्चों को, लेकिन कर्तव्य क्या है हमारे, कर्तव्य अधिकारों से ज्यादा मान के हम चलेंगे। जिस दिन हर घर में ये सोच पैदा हो जाएगी कि अधिकार हमारे बाद में गए, पहले हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। जिस दिन हमारी युवा पीढ़ी में, मातृशक्ति में, सब लोगों में, समाज में भावना आ जाएगी कि बहुत कुछ ले रहे हैं समाज से, इस देश से, इन सरकारों से, प्रशासन से बहुत कुछ हमें मिल रहा है, हम क्या दे रहे हैं देश को, समाज को, सरकारों को, प्रशासन को। यही दे सकते हैं कि प्रशासन के कानूनों का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार के साथ खड़े हों, सरकार का सहयोग करें, समाज में बुराइयों को रोकने का सहयोग करें और अपने अपने परिवारों को जोड़ें। तो हम सब जाके एक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे हम सफाई का काम करते हैं, चाहे वो ऊपर की पोस्ट का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं ईमानदारी लगने से जिस दिन करने का भाव हम में आ जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक पाएगा। अब मैं कुछ शब्द ये कहना चाहूंगा कि संस्थान के जितने लोग काम करने वाले होते हैं, टीम वर्क में क्या होता है, आप ये मान लेंगे संस्थान किसका, विद्यालय किसका है। सरकारी स्कूलों में जाएगा तो ये अगर ये सोच होगी कि ये प्रधानाचार्य का विद्यालय है, प्राइवेट जाएगा तो ये जैसे मान लो अनिल जी का विद्यालय है, ये जाने, ये सोच नहीं रखनी है। विद्यालय सरकारी है, विद्यालय प्राइवेट है, विद्यालय में काम करने वाले सब लोगों का विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय का, संस्थान का चेयरमैन, कोई मुखिया आपको देख रहा है, काम तब करेंगे, ये भाव ये रखना। काम ऐसा करेंगे कि कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है, हमें काम करना है। आत्म संतुष्टि के लिए काम करने का भाव हम जब जागृत कर लेंगे कि किसी को नहीं दिखाना, ऊपर वाला हमें देख रहा है और जो हम ले रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन हमें करनी है। 100% नहीं तो मैक्सिमम करेंगे। रात को देख लेना, नींद उन्हीं लोगों को आती है जो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, भरपूर नींद सोते हैं। जहाँ ये कर्तव्य निष्ठा में कुछ गड़बड़ रह जाती है, किसी भी क्षेत्र में होते वहाँ नींद नहीं आती। इसलिए प्राइवेट संस्थान है, संसाधन जुटाना असंभव सा हो जाता है। अगर
सभी कर्मचारियों का अगर 20 लोगों के परिवारों को रोजगार सृजन इस विद्यालय के माध्यम से हो रहा है, ये भी देशभक्ति है। और अगर वो 20 लोगों की 25 लोगों की टीम, 20-25 लोग तो संस्थान से है, लेकिन टीम तो बन गई आपकी 250 के करीब कि 200 परिवार जुड़ गए, तो आपकी 250 लोगों की एक टीम इकट्ठे एक मिशन पर काम करेंगी, एक दूसरे का हित साधेगी कि विद्यालय के संचालन में क्या प्रॉब्लम है, हमें विद्यालय का कहाँ सहयोग करना है और करना चाहिए, और कर्मचारियों को अगले अपना विद्यालय आगे ले जाना है। स्वाभाविक तौर पर विद्यालय के संचालन करता जो है, जब बुलंदियों पर सभी मिलकर काम ले जाते हैं विद्यालय को, तो स्वाभाविक तौर उस विद्यालय के संचालन करता उन कर्मचारियों का अभिभावकों के लिए भी कुछ न कुछ योजनाएं जरूर सोचता है, उनको भी फायदा देने के लिए जरूर सोचता है। तो कृपा करके मिलकर काम करें। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में, किसी भी विभाग में, किसी भी प्राइवेट में, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हम एक देश सेवा का काम कर रहे हैं, बस ये भाव हमारे मन में रहे। इसके अलावा मेरा एक निवेदन रहेगा मैनेजमेंट से, एक सुझाव रहेगा, अगर आपको अच्छा लगे कि हमारे विद्यालय में, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, जहां भी है, हमारे समाज में वो पिछड़े वर्ग, वो पिछड़े लोग जिनका कोई नहीं है, बेसहारा है, टोटल बेसहारा है। ये नहीं कि सुविधा प्राप्त करने के लिए बेसहारा लोग भी बहुत बढ़ जाते हैं, ये भी हमारे समाज में एक प्रचलन है, लेकिन हकीकत में कोई बेसहारा जिसका कोई नहीं है, ऐसे विद्यालय में, उन सरकारी में तो सरकार सब कुछ दे रही है, वहाँ तो शिक्षक अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसे बच्चों की हेल्प करता है, गुप्त तरीके से करते हैं बहुत सारे शिक्षक, और प्राइवेट भी करते हैं। प्राइवेट विद्यालय के संचालन करता के व्यक्तित्व को मैं व्यक्तिगत तौर पर कई विद्यालयों के व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ, काम कर रहे हैं, लेकिन कृपा करके बहुत बड़ी सेवा होगी कि ऐसे पिछड़े हुए जिनका कोई है ही नहीं, किसी की दृष्टि पड़ ही नहीं रही है, उनको भी हम अपने शैक्षणिक संस्थान में किसी न किसी रूप से उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, तो सच्ची देशभक्ति होगी। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 12 बच्चे, 10 बच्चे, 9 बच्चों की टोली को संगठित करना, उनसे डांस करवाना, मैं तो धन्य हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे थे, एक निवेदन करना, मेरी बात को बुरा मत मानना, ये जो बच्चे परफॉर्म करते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए होती थी, शायद इसमें हम कमी रख रहे हैं, क्योंकि इनका मनोबल पेरेंट्स, हम बड़े लोग, अभिभावक, समाज के लोग नहीं बढ़ाएंगे, ये लोग दिशाहीन हो सकते हैं। इनको हम बढ़ावा देंगे, इन लोगों को मोर बूस्ट अप करेंगे, ये लोग बड़े आगे जा सकते हैं। कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि छोटी छोटी घटनाएं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और घड़े में छेद कर दिया जाए तो बूंद बूंद से खाली हो जाता है, लेकिन बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है, वैसे छोटे छोटे कार्यों से देश महान बनता है। हमारी मातृशक्ति बेटियां, अध्यापिकाएं दोनों बगल में खड़ी होगी। कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बच्चे डांस कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको डांस करने का इंटरेस्ट आ रहा है, उनकी मोटिवेशन देखो। मैंने बताया कि टीचर और माँ हर मोड़ पे, हर पल अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। 300 लोगों के बीच में साइड में आप डांस करना, साइड मेरे को बोले मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर अध्यापिकाएं कर रही है तो उनका फोकस कहाँ, डेडिकेशन कहाँ उनकी बच्चे के ऊपर कि मेरा बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारी जो मातृशक्ति है, इनको त्याग की भावना इनके अंदर ये दी गई। और दूसरी बात जो आपने ऑब्जर्व की कि 200 की संख्या वाले विद्यालय में मुझे नहीं लगता कि जितनी आइटम्स हमने कैलकुलेट की कि सभी को आपने, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, दैट शुड बी द एम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। जो आपने बखूबी किया कि मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट किया, सबका एक्सपोजर हो। और कृपा करके मेरे शिक्षक साथी ध्यान दें, जिस भी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना हो या कम हो, वो विद्यालय पंगु माना जाता है, अपंग माना जाता है। क्योंकि जिस विद्यालय में हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है, ये बात सही है कि पहले उसको रिजल्ट भी फोकस किया जाता है, लेकिन रिजल्ट से ही सब कुछ नहीं होते। 90% वाले भी हमने पिछड़ते हुए देखे और 35% वाले भी आगे बढ़ते हुए हमने देखे। जितना
आप बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे, जितने हर तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराएंगे, बच्चे का उतना ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी और बच्चा जो आगे लेके जाएगा। एक बात ध्यान रखें, बच्चे अभी ना समझ होते हैं, बच्चे बड़े होकर इज्जत करते हैं। जो मेरा 26 साल का ये एक्सपीरियंस है, 26 साल पुराने विद्यार्थियों से संपर्क में रहते हैं, शून्यता से लेकर हर जगह तक। अभी हम जो गलतियां करते हैं अनजाने में, बच्चे अभी पता नहीं लगता, बाद में बच्चे बोलते हैं शिक्षक की इस गलती की वजह से हमारा व्यक्तित्व विकसित नहीं हुआ। लेकिन आज जो विद्यार्थी जिसे बड़े हो जाते हैं और हमको ऑब्जर्व करते हैं कि इस शिक्षक की वजह से क्या गुण आगे हमें नहीं पता, कुछ 20 साल बाद मिले, कुछ 25 साल बाद मिले, तो बोले जी ये तो आपकी वजह से हुआ, हमें पता नहीं था, हमने ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार मैंने ये भी सुना कि शिक्षकों को सारे इंटेरोगेट करते हैं, सारा काम शिक्षकों से करवाते हैं, सारे इंटेरोगेट करते हैं। ऐसा कभी कभी आभास होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि वी आर डिफरेंट, हम समाज में अलग हैं, हम समाज में अलग हैं, हमसे राष्ट्र निर्माण की उम्मीद है, हमको राष्ट्र का संचालन, राष्ट्र को एक युवा पीढ़ी और संस्कारित पीढ़ी देने का आह्वान समाज हमसे करता है, इसलिए वो हम पर उंगली ज्यादा उठाता है। तो स्वाभाविक तौर पर ये उनकी घृणा नहीं है, पूरे समाज के हर वर्ग के हमारे प्रति लगाव है, क्योंकि वो हमें उस स्वरूप में देखना चाहता है जिस स्वरूप में हम काम अगर ना कर रहे हैं तो उम्मीद करता है हम काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि घरों से जो बेसिक शिक्षा जो कहीं विद्यालय में नहीं मिल सकती है, कहीं नहीं मिल सकती है, जड़ों से जोड़ने की शिक्षा, उस शिक्षा को थोड़ा सा मजबूत करें और आपकी विद्यालय में माँ चंडी माता के आशीर्वाद से और मेरी जन्म देने वाली माँ की प्रेरणा से अपने परम पूज्य पिताजी को जो 40 साल से वन विभाग में ऑफिसर के तौर पर काम किया, उनको याद करते हुए छोटी सी राशि आपके विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए अपने पिताजी का स्मरण करते हुए माँ की प्रेरणा से आपको अर्पित करता हूँ, जो कृपा करके उसको आप विद्यालय के सर्वांगीण विकास में ही लगाएंगे। और उम्मीद करता करूँगा कि हम सब मिलकर झुकने नहीं देंगे अपने समाज को, अपने देश को, ना झुकने देंगे ना रुकने देंगे। किसी न किसी स्वरूप में हम अपने देश का विस्तार करने के लिए आगे अपना प्रयास अंतिम सांस तक रखेंगे। जैसे हमारे शहीदों ने कहा था कि वी आर गिविंग अवर टुडेज फॉर योर टुमारो। नेता सुभाष चंद्र जी बोस ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया था, कहीमा जगह में उनके नाम से पिलर्स में उस शहीदों के नाम लिखे हैं जो शहीद हो गए देश को आजाद कराने में। और वहाँ लिखा है स्लोगन, देखो पहले से तैयार है मरने के लिए कि हम वी आर गिविंग अवर टुडेज फॉर योर टुमारो, कि हम अपना आज दे रहे हैं आपके आने वाले कल के लिए। सबका नाम लेना असंभव है, कितने ऐसे लोग हुए जो खुशी खुशी से ये कहा कि आने वाले कल के लिए हम अपना बलिदान दे रहे हैं। तो कृपा करके ऐसे बलिदान देने वाली पीढ़ी को तैयार करें, समाज से तैयार करें, घरों से तैयार करें, तो हम सब सौभाग्यशाली हो जाएंगे। और हम लोग सब जो है पूरे विश्व को कुटुंब मानते, पूरे विश्व का नेतृत्व जो है इस देश से हर क्षेत्र में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।